فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 ایک اہم مظاہرے میں کانگریس کے اصل کارکنوں نے اسٹیشن گھن پور حلقے کے دھرم ساگر منڈل میں کرونا پورم کے قریب قومی شاہراہ پر دھرنا دیا۔ مقامی کانگریس لیڈر سنگاپورم اندرا کی قیادت میں مظاہرین نے ایم ایل اے کڈیم سری ہری کے اپنے حامیوں کے تئیں جانبداری پر اپنی عدم اطمینان کا اظہار کیا اور پارٹی کے دیرینہ ممبران کو نظر انداز کیا جو اس کے قیام سے ہی کانگریس کے ساتھ ہیں۔ مظاہرین نے کڈیم سری ہری پر اپنے دھڑے کو پارٹی کے سرشار کارکنوں پر ترجیح دینے پر تنقید کی جنہوں نے برسوں سے پارٹی کی ترقی اور کامیابی میں حصہ ڈالا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارٹی قیادت ان کی شکایات کا ازالہ کرے اور پارٹی کے تمام ارکان کے ساتھ مساوی سلوک کو یقینی بنائے۔ احتجاج کا مقصد پارٹی کے اندرونی مسائل کی طرف توجہ دلانا اور کانگریس کے اصل حامیوں میں اعتماد بحال کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و چندرائن گٹا، رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ایم ایل اے نے کلکٹر حیدرآباد سے ملاقات کی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا، جیسے بوجو گٹا ہاؤسنگ، دھوبی گھاٹ کے سیتارام باغ اراضی کے ضابطے اور آنگن واڑیوں میں اضافہ بھی نامپلی ایریا اسپتال کے لیے مزید عملہ فراہم کرنے کو بھی کہا گیا۔ اس موقع پر نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین بھی موجود تھے۔ ایک اہم پیش رفت میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے آئی اے ایس افسران بشمول امرپالی کی درخواست کو مسترد کر دیا، جنہوں نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل سی اے ٹی کے حالیہ فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ آئی اے ایس افسران نے سی اے ٹی کے فیصلے کے خلاف ریلیف کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، لیکن ان کی درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ سی اے ٹی کے فیصلے میں ان افسران کے آندھرا پردیش تبادلے کا حکم دیا گیا تھا جسے انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا، تاہم ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے افسران کو فوری طور پر آندھرا پردیش میں اپنی نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت دی۔ یہ فیصلہ ان افسران کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے جو ہائی کورٹ سے ریلیف کی امید کر رہے تھے اور یہ سی اے ٹی کے سابقہ فیصلے کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے 21 روزہ کلین حیدرآباد ہیریٹیج ویسٹ ریموول پروگرام کا ڈپٹی میئر متسری لتا شوبھن ریڈی نے تاناکا میں اپنے کیمپ آفس میں آغاز کیا۔ یہ پروگرام اگلے مہینے کی 8 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے شہر کے تاریخی مقامات پر جمع ہونے والے کچرے کی مکمل طور پر نکاسی کی جائے گی اور ان کی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کے تحت شہریوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ یہ پروگرام شہر کی صفائی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ تاریخی مقامات کے تحفظ میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اتر پردیش کے ہاپوڑ کوٹ میں اتر پردیش اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران 3 فروری 2022 کو ہونے والے فائرنگ کے واقعے سے متعلق سماعت میں شرکت کے لیے وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران خاصی سیکیورٹی دیکھی گئی اور اس دوران مجلسی کارکن بھی موجود رہے۔ بس بابا یہی تک۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ دریائے موسیٰ کے حوالے سے حیدرآباد کے لیے 100% سیوریج ٹریٹمنٹ کی صلاحیت کی تعمیر ہماری حکومت کے دوران شروع کی گئی تھی۔ کچھ مکمل ہو چکی ہیں اور کچھ مکمل ہو رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ KCR حکومت نے 4,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 100% سیوریج پلانٹس لگائے۔ موسیٰ بیوٹیفیکیشن ہم پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حیدرآباد میں بلڈروں اور تاجروں کو دھمکانے اور ان سے رقم وصول کرنے کے لیے ہائیڈرا کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سننے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کہا کہ ہم نے بھی موسیٰ کو سنوارا لیکن غریبوں کے پیٹ پر لات نہیں مارا۔ మరొక 20 MLDల ప్లాంట్ అక్కడ అవి కూడా పూర్తయిపోయినాయి. అంబర్పేటలో ఒక 300 MLD ప్లాంట్ పూర్తయి ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉంది. శుద్ధీకరణ ఏదైతుందో మేము ఆల్రెడీ పూర్తి చేసినాం. వీటి పూర్తి చేస్తే కిందికి ఆటోమేటిక్గానే శుద్ధమైన నీరు నల్గొండకు ఆటోమేటిక్గా కిందికి పోతుంది. ఆలేరు కావచ్చు, భువనగిరి కావచ్చు, తుంగతుర్తి కావచ్చు, నకరేకల్ కావచ్చు, ఆ ప్రాంతంలో ఉండే పంటలకు కావచ్చు 50, 60, 70 ఏళ్లుగా గత ప్రభుత్వాలు చేయలేని పనిని కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసింది కాబట్టే శుద్ధి చేయబడిన నీళ్లు మురికి నీరు కిందికి రాబోతా ఉన్నాయి. ఇది వాస్తవం. దానికి కొత్తగా ఖర్చు పెట్టేదేమీ లేదు. రెండవది BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के खिलाफ FIR का इंदराज। अतरम सोगन्ना ने KTR के तबसरों के बारे में शिकायत की है कि मूसा प्रोजेक्ट में 1,500 करोड़ रुपए का घोटाला है। KTR ने कहा जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली भेजे जा रहे। कांग्रेस लीडर अतरम सोगन्ना ने KTR के खिलाफ खानपुर हल्के के अतनूर PS में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हाई कोर्ट का हाइड्रा को बड़ा रिलीफ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में तालाबों और नहरों पर तजावुजात करके तामीर की गई गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दम करने के लिए हाइड्रा कायम किया है। एक तरफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस फैसले की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तनकीद की बारिश हो रही है। हाइड्रा का ये तनाजा हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हाइड्रा के मुखालिफिन और हाइड्रा मुतासिरीन ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त गुजारों ने इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए हाइड्रा की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। हाइड्रा को बड़ा रिलीफ मिला। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि हाइड्रा की तश्कील को गलत करार नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने हाइड्रा GO 99 की तश्कील के इक़दामात को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत की। बेंच ने कहा कि रियासती हुकूमत को हाइड्रा कायम करने का इख्तियार है। इस वक्त के रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी वक्त सर्वे कर सकता है। इसमें कहा गया है कि हुकूमत को इन अमवार की निगरानी के लिए एक ऑफिसर मुकर्रर करने का इख्तियार भी है। कहा जाता है कि हाइड्रा की तश्कील इसी तरतीब से हुई थी। बेंच ने हाइड्रा की हिमायत में अपनी राय का इजहार किया है कि निजाम दौर के रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं थी और इसे FTL और बफर जोन का सर्वे करने और वहां की तामीरात और तजावुजात को गिराने का इख्तियार हासिल है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि आबशारी एक्ट भी इस वक्त के रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक बनाया गया था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में तमाम रियासती हुकूमतों के चीफ सेक्रेटरियों को FTL और बफर जोन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी थी। बहुत से मुतासिरीन ने हाई कोर्ट से रुजू करते हुए कहा कि मूसी के इलाके में इनके घरों पर RBX के निशानात और सुर्ख खतूत लगाए गए हैं और किसी भी वक्त मुनद्दम होने का इम्कान है। इसके अलावा कुछ दीगर मुतासिरीन ने कहा कि हाइड्रा के अहलकारों ने प्राइवेट पट्टा अराजी में दाखिल होकर बगैर किसी नोटिस के तामीरात को मिसमार कर दिया। मुतासिरीन की जानिब से वकला ने हाई कोर्ट से इस्तदा किया कि हाइड्रा की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इन्होंने कहा कि हाइड्रा वो नहीं कर सकती जो GHMC कर रही है। ताहम हुकूमत के खुसूसी वकील ने अदालत को बताया कि कानून के मुताबिक नोटिस जारी करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद हुकूमत को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि हाइड्रा से मुतालिक GO 99 को चैलेंज करने वाले मुकदमों की समाअत की जाएगी। अगर हुकूमत काउंटर फाइल करती है तो अगली समाअत में मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने केस की समाअत रवा साल की 29 तारीख तक मुलतवी कर दी। अंधेरे तारीकी में DSC की बाकायदा काउंसलिंग देखी गई। तफसीलात के मुताबिक DSC 2024 के उम्मीदवारों की प्लेसमेंट काउंसलिंग जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के मरकज में ZPHS गर्ल्स स्कूल में अंधेरे में की गई। काउंसलिंग में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को मुनासिब सहूलियात के बगैर अंधेरे में छोड़ दिया गया, जो कि अपनी पढ़ाई अंधेरे में करने पर मजबूर हैं।
तेलंगाना हुकूमत आपाशी के शोबे पर माली बोझ को कम करने के लिए मौजूदा ज़्यादा लागत वाले कलील मुद्दती कर्ज़ों को कम लागत वाले तवील मुद्दती नरम कर्ज़ों के साथ तब्दील करने पर गौर कर रही। फिलहाल रियासत कलील मुद्दती कर्ज़ों की बुलंद कीमत से दो चार है जो रियासती खजाने पर दबाव डाल रहे। तवील मुद्दती कर्ज़ों का इंतखाब करके हुकूमत का मकसद EMI की अदायगियों के बोझ को कम करना और सूद की लागत को कम करना है। वज़ीर आपाशी ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से आपाशी के कर्जों पर 5 साल के लिए मौखर करने की भी दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में आपाशी और शहरी सप्लाई के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने रमंजिल कॉलोनी में वाक़े जल सौदा के दफ्तर में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में महकमे आपाशी के मुशीर आदित्य नाथ दास, सेक्रेटरी राहुल बोजा, स्पेशल सेक्रेटरी प्रशांत जीवन पाटिल और चीफ इंजीनियर अनिल कुमार नागेंद्र राव और डिप्टी चीफ इंजीनियर के श्रीनिवास के अलावा AIIB के नुमाइंदों संगमाकम और राजेश समेत अहम ओहदेदारों ने शिरकत की। जेल में रामलीला में बंदर बने 2 कैदी सीता माता की तलाश में बंदरों के भेष में फरार। हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में रामलीला में रावण के जरिए सीता माता के अगवा के मंजर के बाद वानर सेना के अरकान ने सीता माता की तलाश शुरू कर दी। इस वक्त कैदी पंकज और राजकुमार दोनों जो वानस सेना से बंदर का किरदार अदा कर रहे थे, सब लोग रामलीला में मशगूल थे। उन्होंने सीता माता की तलाश के बहाने जेल की 22 फुट लंबी दीवार को वहां काम करने के लिए रखी गई सीढ़ियों को जोड़कर दीवार फलांग कर भाग गए। रामलीला के खत्म होने के बाद जब रात कैदियों को खाना परोसा जा रहा था तो 2 कैदी कम थे, जिसके बाद जेल इंतजामिया को दोनों कैदियों के फरार होने की खबर हुई। इस मामले में जेल इंतजामिया के 6 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें जेलर और डिप्टी जेलर शामिल हैं। पंकज कत्ल के मामले में सजा काट रहा था और राजकुमार किडनैपिंग के सिलसिले में अंडर ट्रायल था। फरार कैदियों पर पुलिस ने 50-50 हज़ार रुपए के इनाम का ऐलान किया है। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सिकुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक जो कैदी है पंकज वो सजा याफ्ता भी है और परम वाल्मीकि ग्रुप से वो जुड़ा रहा है और एक 302 के मामले में यहाँ निरुद्ध है और उसमें सजा भी हुई है उसको, और उसका भी हम लोग जल्दी ही एक चुनौती के तौर पे से ले रहे हैं। उसमें जल्दी देखिए, कल शाम की ये घटना है, करीब 7:30-8 बजे के आसपास की ये घटना है और उसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा खुद अपने स्तर से ही इसमें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस को सूचना आज सुबह इनके द्वारा दी गई है। हम इन जो डिले का कारण है उसका पता लगा रहे हैं कि वो क्यों इतना डिले हुआ है सूचना में, और साथ में जो एक SOP है क्या वो प्रॉपर तौर पर फॉलो हुई या नहीं हुई उसको भी ये भी जांच करें। पर जेलर जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर अभी तैनात हैं। जेल अधीक्षक इस समय छुट्टी पे हैं, आज वो वापसी करेंगे। जो जेल मैनुअल्स हैं उसकी क्या SOP है उसको अभी हम लोग भी चेक करा रहे हैं क्या क्या उसमें किस प्रोसेस से ये होना चाहिए था। अगर इनके पास सूचना रात के समय मिल गई थी तो डिले के कारण। दीवार गिरने के सबब 5 गाड़ियां तबाह हो गईं। तफसीलात के मुताबिक विजयवाड़ा के कमला नेहरू विमेंस हॉस्टल की हिफाजती दीवार गिर गई। यह हादसा सूर्यापेट PS इलाके में पेश आया। हिफाजती दीवार पास खड़ी 5 गाड़ियों पर गिरी जिससे गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया।
हलफ बर्दारी की ये तकरीब यहाँ झील डल के किनारों पर वाक़ शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुई, जहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला और उनके मुंतखब अरकान को अपने ओहदों को हलफ दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया, जबकि पार्टी के लीडरों जावेद डार सकीना यतो, जावेद राना और सतीश शर्मा चंप ने काबीना वजीरों के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में जिन नुमाया लीडरों ने शिरकत की उनमें सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, CPIM लीडर प्रकाश शेखावत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल थे और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाक़े की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। सोशल मीडिया पर एक पैगाम मुबारकबाद में मोदी ने कहा, उमर अब्दुल्ला जी को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। वहाँ के लोगों की खिदमत के लिए, उनकी कोशिशों के लिए मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाक़ा बनने के बाद इसके पहले वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है। उमर अब्दुल्ला की NC और कांग्रेस इत्तेहाद की 90 रुकनी जम्मू कश्मीर असम्बली के लिए इस माह होने वाले इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत मिली। आर्टिकल 370 के खात्मे और रियासत को 2 मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाक़ों में दोबारा मुनज़्ज़म करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत कायम हुई है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।